Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today is 31st October and the last day of this month. November brings lot of hectic activities for all the aspirants, those are seeking job in banking industry. Now one of the activity that is most awaited is result of SBI Junior Associate. Now, my own hunch says this result must come in November 2021. Document verification may happen in December and joining of these candidates may happen in January 2022. Although SBI has not announced any such dates, but we can infer these dates from the information that is circulating around. Now, there is another letter that is in circulation regarding waitlist 3 of SBI Junior Associate 2020 series. This letter in circulation says the joining of third waitlist will complete by 13th of December. In reply to earlier RTI, SBI has mentioned that the third waitlist will come on 15th of November 2021. Does it mean that result will come after 13th of December? No. Some candidates are unnecessarily linking these two independent events into one. Selection of 2020 is a separate exercise. Selection of 2021 candidates is a separate exercise and it has no effect on each other. So both things will move simultaneously, meaning whereby the date of announcement of waitlist 3 and joining of waitlist 3 candidate has no effect on the date of SBI Junior Associate 2021. These are independent events. So the candidates, those are unnecessarily confused that as third waitlist joining will happen up to 13th of December, result cannot come before that. They are not their thought is not based on any logic. This is an independent process. This is already delayed exam. If had this exam happened earlier, by this time result might have come. Still third list would come on 15th of November. So we can very well expect result in the month of November for SBI Junior Associate 2021. My best wishes are with you, but there is no point waiting for the result. That is my advice. Some candidates are day and out asking, sir, when result will come, when result will come. It will only take away your time. And that's why on this subject, I am putting some videos just to satisfy your anxiety and focus your energies towards 3 important examinations that is lined up: SBI PO, IBPS PO and IBPS clerk. Because out of 10 candidates, those have appeared for SBI Junior Associate, 1 may get the selection. Other 9 has to again compete for future examinations. So the right approach is continue preparing for future exams and let the result come as and when it is going to come. But there is no linkage between third waitlist release or joining with the result of 2021 result. Make this concept clear in your mind. Both are independent selections. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. SBI जूनियर एसोसिएट का रिजल्ट कब आएगा, इसको लेके काफी चिंता है कैंडिडेट्स के बीच और अलग अलग तरह की इस पर डिस्कशंस हो रही हैं. पहली चीज ये है कि क्या लगता है कब आएगा रिजल्ट. मेरा अपना अनुमान ये है कि SBI जूनियर एसोसिएट का रिजल्ट नवंबर में आना चाहिए, दिसंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी चाहिए
और जनवरी में ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। ये टाइमलाइन मुझे लग रही है जिसको स्टेट बैंक फॉलो करेगा। अब कुछ लोगों के मन में शंका है कि ये टाइमलाइन फॉलो होगी कि नहीं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहे हैं वेट लिस्ट 3 2020 सीरीज से। जो 2020 का एग्जाम हुआ है उसकी थर्ड वेट लिस्ट आरटीआई के रिप्लाई के अनुसार 15 नवंबर को आनी चाहिए। उसके बाद दूसरा एक लेटर जो इन सर्कुलेशन है उसमें एसबीआई ने ऐसा इंडिकेशन दिया है कि थर्ड वेट लिस्ट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग 13 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। अब कुछ लोग इन दो डेट्स को लेके कंफ्यूज हैं कि अगर 15 नवंबर को थर्ड वेट लिस्ट आनी है, 13 दिसंबर को ज्वाइनिंग होनी है, तो रिजल्ट कैसे आ सकता है। रिजल्ट का आना ना आना इन डेटों से कोई सरोकार नहीं रखता। पहली चीज हमें ये दिमाग में क्लियर कर लेनी है। जो 2020 की सिलेक्शन है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिलेक्शन है और जो 2021 की सिलेक्शन है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट सिलेक्शन है। तो पहली सिलेक्शन की वेट लिस्ट का आना और दूसरी सिलेक्शन का रिजल्ट आ जाना आपस में डिपेंडेंट नहीं है। मान लीजिए ये एग्ज़ाम जल्दी हो जाता, ये डिलेड एग्ज़ाम है, तो क्या होता, रिजल्ट कब का आ चुका होता। तो इसलिए इसको कंफ्यूजन में मत रहिए। ये तो स्टेट बैंक ने डिसाइड करना है कि उसको एसबीआई जूनियर एसोसिएट का रिजल्ट कब देना है। अगर उनकी मन में है कि हमें इस बैच को जनवरी में ज्वाइन कराना है, जो कि काफ़ी संभावित है, तो नेचुरल रिजल्ट नवंबर में ही आएगा। दिसंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगी और जनवरी में ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी संभावना बहुत प्रबल है। जहाँ तक थर्ड वेट लिस्ट का सवाल है वो छोटी सी लिस्ट होती है, क्योंकि मेजर लिस्ट फर्स्ट और सेकेंड ही होती है। क्योंकि जो पिछले इन दो लिस्टों में ज्वाइन नहीं किए होंगे या 2020 के लोग रिजाइन करके चले गए होंगे, उतने कैंडिडेट की ही थर्ड लिस्ट आएगी। तो नेचुरल है वो छोटी लिस्ट होगी। तो उसके आधार पर एसबीआई का स्टाफ की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। जो रियल स्टाफ मिलना है स्टेट बैंक को वो इन 5000 लोग जो ये सिलेक्ट होंगे इसमें से ही मिलना है। तो इसलिए इसको डिले करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो मेरा अपना मानना ये है कि हमें नवंबर में रिजल्ट के लिए तैयार रहना चाहिए, दिसंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और जनवरी में ज्वाइनिंग के लिए। साथ ही साथ मेरी ये सलाह है कि रोज रोज हमें स्टेट बैंक के रिजल्ट की इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के वीडियो हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो आपके मन में शंका है, जो मन में अंतर्द्वंद चल रहा है, वो शांत हो जाए। पर आपको करना क्या चाहिए, जो आने वाले 3 एग्जाम हैं उस पर पूरी फोकस करके तैयारी करनी चाहिए। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो जो लोग 10 बैठे हैं, क्योंकि 10 टाइम्स द सीट लोग मेन में बैठे हैं, तो एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा, 9 फिर भी रह जाएंगे। तो इसलिए सिलेक्शन का जो रेशो है वो बहुत हाई नहीं होता है। तो अधिकांश लोगों को दोबारा नौकरी के लिए मैदान में कूदना ही पड़ेगा। तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है या अच्छा नहीं हुआ है, मुझे आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहना चाहिए। और जब रिज़ल्ट आएगा तब हम रिज़ल्ट देख के उसके अगले स्टेप्स के बारे में चर्चा करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।